So, good morning, students. So, I am back again with share you some of the concepts about circle. Okay. So, this is of class 6 mathematics subject, and it is of chapter 4, isn't it? The name of the chapter is basic geometrical ideas. So, we will talk about circle today. We have already discussed about polygons, triangle, quadrilateral in the previous videos, isn't it? You can go and watch those videos if your concept is not clear. So, now we will talk about circle. What is circle? See, I have already written out the definition. Combination of points such that every point is equidistant from the center. So, I have already told you people on the very beginning that anything is made up of points. If you draw a line, that means it is made up of thousands of points, isn't it? Combination of points make a line segment ray, isn't it? So, combination of points such that every point is equidistant from the center. So, see, whenever you need to draw a circle, no, you should take a compass and after that you should draw. Okay, now I am drawing with my hands to make you people understand. So, this is the point, circle center. Okay, let me name it as O. So, whenever you will draw taking a center, whenever you will draw, you will get a circle. This figure is called circle, isn't it? Combination of points. See, this circle is also combination of points, and every point is equidistant from the center. This is my center. That means this distance is equal to this distance, means from the center everywhere the distance is equal, everywhere the distance is equal. This is the example definition of circle. If this is 5, then this will also 5, this will also 5 centimeter, this will also 5, all are 5 centimeter. Okay, this is the concept of circle. See, with the hand it is impossible to draw a circle. All the from the center all the distance will not be equal. To make a circle you need a compass and then you can draw a circle. Okay. Now we will talk about parts of circle. Parts of circle. See, circle has some of the parts. Say for example, first one is center. Okay. Center. Now what is center? I have already told about this. Center means point from which all the distance are equal. Okay. That is, if I write, I will write points from which you can make from your own also, no problem. This is I am making point from which all points on the circle, all points on the circle are equidistant. By equal you can say equidistant, means equidistance means equal distance. Okay, that means this is a point, center is a point from which all the पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल में जितना भी पॉइंट्स जा कहीं पे भी किसी पॉइंट में लगा दो वो हमेशा इक्वल रहेगा, उसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं. तो ओ इज द सेंटर, इजंट हमारे लिए ओ सेंटर है. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2 क्या है? रेडियस. रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं बाय स्मॉल आर, स्मॉल आर. तो रेडियस क्या है? एक लाइन सेगमेंट होगा जो सेंटर से सर्कल में जाके टच होता है. ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. इफ़ दिस इज़ माई सेंटर, ओके, तो इस सेंटर से सर्कल में कहीं पे भी जब एक लाइन टच कराओगे तो वो हमारा रेडियस हो जाएगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा. ठीक है. डेफिनेशन कैसा लिखेंगे? लाइन बाय लाइन सेगमेंट, यू कैन से लाइन सेगमेंट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर यू पीपल. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन सर्कल, एनी पॉइंट ऑन सर्कल. ठीक है. सेंटर से एनी पॉइंट ऑन सर्कल, अगर इसका नाम ए दे देते देन ओ ए इज द रेडियस, मेरा रेडियस होगा, ओ ए इज द रेडियस. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा डायमीटर, DIAMETER. डायमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं डी से. ठीक है. तो डायमीटर क्या है इसमें देख लेते हैं. ये मेरा सेंटर है, कोई भी एक लाइन, ठीक है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट से होके गुजरना पड़ेगा. दैट मीन्स, और सपोज ये एक पॉइंट है और इधर से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि दूसरा पॉइंट में जाएगा और वो सेंटर से पास होके जाएगा. ठीक है. इंग्लिश में बोलेंगे, कैसा बोलेंगे? लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर एंड टचेस द अदर पॉइंट. इधर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जब हमने एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो सेंटर होके जाके दूसरा पॉइंट में टच करेगा, देन विल से दिस इज अ डायमीटर. सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, देन मेरा डायमीटर क्या आ जाएगा? डायमीटर इज इक्वल टू ए बी इज माई डायमीटर, इजंट इट? और भी ड्रॉ कर सकते हो. सी, ये भी एक डायमीटर है, इस पॉइंट से दूसरा पॉइंट में आके टच हो रहा है, वो सेंटर होके गुजर रहा है. देन सी डी, अगर इसको बोले थे डायमीटर, सी डी भी मेरा
डायमीटर है, ठीक है। तो डेफिनेशन हम नहीं लिख ले, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। कैसा लिखोगे इंग्लिश में, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर एंड टचेस द 2 पॉइंट्स, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड एक इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है कॉर्ड। इसमें डायमीटर और कॉर्ड में कन्फ्यूजन मत होना स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉर्ड क्या है, देखो 2 पॉइंट से सेम डेफिनेशन इसका बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल में कई 2 पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट है मेरा सर्कल में, ये एक पॉइंट है मेरा सर्कल में, इस दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये मेरा कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। सपोज इसको मैं डिनोट करता हूँ C1, कॉर्ड 1, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, दूसरा एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करो, ये मेरा एक कॉर्ड हो जाएगा C2 सपोज, ठीक है। ऐसा बहुत सारा कॉर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा कॉर्ड हो जाएगा C1 C2, बहुत सारा, ये भी इधर एक पॉइंट है सपोज और इधर एक पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करो, ये मेरा एक और कॉर्ड है। ऐसा बहुत सारा कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट दैट joins the 2 points on the circle, any 2 points on the circle, ठीक है, on the circle, ठीक है। ये आई होप क्लियर हो गया तुम लोगों को। देखो फिर से एक बार थोड़ा समझा के दे देते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरा सेंटर है। सेंटर से जो सर्कमफेरेंस में जहाँ पे टच करेगा सर्कल में, इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, और अगर सेंटर से होके, ये मेरा सेंटर है, अगर एक लाइन जो 2 पॉइंट, इधर एक पॉइंट है इधर एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अगर सेंटर से टच करके जाता है, सेंटर को टच करके जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। और जो 2 पॉइंट सपोज इधर भी है इधर भी, अब इन दोनों को टच करने के ज्वाइन करने से हमारा डायमीटर टच नहीं होता है, इजंट इट, तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। अभी कुछ चीज़ हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, नोट्स बोल के लिख सकते हो। नोट 1, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखो अगर मैं ऐसा कॉर्ड को बढ़ाते जाऊँ, बड़ा करते जाऊँ, एक समय आ जाएगा जो कॉर्ड जो है वो सेंटर से गुजरेगा, और जो पॉइंट जो सेंटर से गुजरता है उसको डायमीटर बोलते हैं, इजंट इट। सो आई कैन से डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड हियर। सवाल आ सकता है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एवरी डायमीटर इज ए कॉर्ड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी डायमीटर इज ए कॉर्ड, जो भी जितना भी डायमीटर हो ये सब कॉर्ड है। कैसा कॉर्ड है, देखो मैं समझा के देता हूँ इसमें। देखो ये मेरा एक डायमीटर है, ये कॉर्ड भी है। जो कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में टच करता है, तो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये दोनों, ये सब डायमीटर भी है। क्यों, बिकॉज ये दोनों सेंटर होके गुजरता है, इजंट इट, इसीलिए ये एवरी डायमीटर इज ए कॉर्ड। बट रिमेंबर, एवरी कॉर्ड इज नॉट ए डायमीटर, एवरी कॉर्ड इज नॉट ए डायमीटर, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता है, उसी कॉर्ड को डायमीटर बोलेंगे जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है, ठीक है। देखो ये जो है इसको डायमीटर नहीं बोल सकते, बिकॉज ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ये भी सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ देखते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर, जो हमने सब में पढ़ते हैं। सर्कल के अंदर में कई अगर पॉइंट है, ये वाला हो या ये वाला हो या फिर ये वाला हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, इंटीरियर। और बाहर में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, इसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और इसमें जो वो सर्कमफेरेंस में बोलेंगे, या फिर बाउंड्री में ऑफ द सर्कल में बोलेंगे, या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अभी सर्कमफेरेंस और डायमीटर एरिया क्या है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा है, हम थोड़ा समझा के दे देते हैं। सर्कमफेरेंस क्या है, देखो अगर मैं इसके बारे में, इस सर्कल के बारे में बात करूँ, तो अगर सर्कमफेरेंस के बारे में बात करूँ, सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री, ठीक है। मतलब ये इधर से अगर स्टार्ट किया, ये पूरा मेरा सर्कमफेरेंस आ जाएगा, ठीक है। सपोज तुम्हारा एक लैंड है, सर्कुलर लैंड है, तुम्हें इसमें फेंस करना है, बेड़ा देना है, ठीक है, जाल लगाना है, तो जाल कैसा लगाओगे, ये ऐसा लगाओगे, इजंट इट, ऐसा 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 ऐसा, तो ये मेरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं एरिया की बात बोलूँ, एरिया अगर डिफाइन करने जाओ, तो इस सर्कमफेरेंस के अंदर जो स्पेस है उसको हम लोग एरिया बोलेंगे, ये वाला। सपोज मुझे खेत करना है इधर किसी, ठीक है, कोई भी एक सब्जी लगाना है, तो इस
पार्ट को हम लोग एरिया बोलेंगे, बिकॉज ये क्या है, उस सर्कमफेरेंस के अंदर है, ठीक है, उसको हम लोग एरिया बोलेंगे। एरिया इंक्लूड विद इन द सर्कल को सर्कमफेरेंस बोलेंगे, और सर्कमफेरेंस क्या है, एरिया बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। लंबा हो गया वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।